مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو اپنی خوشیاں دے، آپ کو خوشی اور اطمینان بخشے کہ آپ خوش ہیں۔ نیا سال آ گیا ہے، نئی خوشیاں آپ نے منائی ہے، نئے دن دیکھ رہے ہیں آپ۔ خداوند آپ کی عمر دراز کرے، آپ کے دائیں ہاتھ میں عمر دراز ہو اور بائیں ہاتھ میں عزت اور دولت بخش دے۔ آج کا زندہ کلام ہمیں خدا نے دیا ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ آج کا کلام ہے محبت، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا۔ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے رومیوں کی کتاب، اس کا 13 باب، اس کی 8 آیت ہے۔ رومیوں کی کتاب، اس کا 13 باب اور اس کی 8 آیت، اس میں لکھا ہے، آپس کی محبت کے سوائے کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو۔ اگر ہم محبت نہیں رکھتے تو پھر ہم قرض دار ہیں کسی دوسرے کے، جس سے ہم جھگڑا کرتے ہیں، جس سے ہم حسد رکھتے ہیں، جس سے ہم کینہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ خدا کا کلام مقدس ہمیں بتا رہا ہے کہ کسی سے آپ کینہ نہ رکھیں۔ آپ کی محبت، جو آپس کی محبت کے سوائے کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو۔ اگر ہم محبت نہیں رکھیں گے آپس میں تو ہم ایک دوسرے کے بھائی قرض دار ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اگر ہم کلام مقدس سے یسوع مسیح سے محبت نہیں رکھتے تو ہم یسوع مسیح کے بھی قرض دار ہیں، کیونکہ اس نے اپنی محبت کو ہم پر یوں ظاہر کیا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ آپ سب لوگ اس آیت کو جانتے ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی یہ 16 آیت ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتا رہی ہے کہ قرض دار نہ ہو۔ اگر ہم قرض میں مر جائیں گے تو خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، کیونکہ مسیح کے لوگ جو ہیں قرض لیتے نہیں بلکہ وہ قرض دیتے ہیں، اور دے کر مانگنے کی، لینے کی جرت نہیں رکھتے۔ مسیحی لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، کسی کو قرض دیتے ہیں تو واپس لینے کی امید نہیں رکھتے۔ امید صرف خداوند یسوع مسیح پر ہی ہے، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر عمل کیا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے مکمل طور پر محبت رکھتے ہیں تو سمجھ لے کہ ہم نے شریعت پر عمل کیا ہے۔ اگر ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے تو ہم راست باز بھی نہ ٹھہریں گے۔ شریعت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ خدا یسوع مسیح نے شریعت کے ہر حکم پر عمل کیا اور اسے مانا اور پورا کیا۔ آگے خدا کا کلام مقدس ہمیں بتا رہا ہے، کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، اور ان کے سوائے اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ سب باتوں کا خلاصہ پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اگر کہ پڑوسی جو ہے، ساتھ والا گھر جو ہے، ہمارے درمیان میں ہمارے گھر کے سامنے کوڑا بھی پھینک دیتا ہے تو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، اسے پکڑیں اور ٹوکری میں ڈال کر پھینک دیں۔ 10,000 باتیں کہنے، 5,000 باتیں کہنے سے 5 باتیں عقل سے کہہ لیں تو بہتر یہ اپنی زبان سے غلط الفاظ بولنے سے پہلے آپ اس کوڑے کو اکٹھا کریں اور پھینک دیں۔ پڑوسی سے ایسی محبت رکھیں۔ آگے ہمیں خدا کا زندہ کلام بتا رہا ہے، سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ،
मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती। अगर आप में मोहब्बत है तो आप किसी के साथ बदी नहीं करेंगे। ये हमारे लिए वाजिब और ज़रूरी है। इस बात से मोहब्बत शरीयत की तमील है। मोहब्बत जो है शरीयत की तमील है। अगर हम मोहब्बत रखते हैं तो हम शरीयत पर ईमान रखते हैं। पलूस रसूल हमें बता रहा है कि जब ईमान आ चुका तो आप शरीयत के मतहत ना रहे। शरीयत के आने से पहले, ईमान के आने से पहले शरीयत की मतहती में हमारी निगाहबानी होती थी। अब आपकी निगाहबानी हमारे खुदाम यसुम मसीह के हाथ में है। फिर भी हमने शरीयत के हुक्मों को मानना है और शरीयत पर अमल भी करना ज़रूरी है। यूहन्ना की किताब उसका 13 बाब और उसकी 31 यूहन्ना की किताब उसका 13 बाब उसकी 34 और 35 है। देखते हैं कि खुदाम का कलाम हमें क्या बताता है। हुक्म है ना, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। पहले हुक्मों को तो हम पूरा नहीं कर रहे। आगे देखे हमें वो नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रख, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। एक दूसरे से वो कहता है कि मोहब्बत रख जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। मसीह जैसी मोहब्बत तो हमें, मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकती। अगर कोशिश करें तो हो भी सकती है। बर्दाश्त की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप में बर्दाश्त है तो आप मसीह जैसी अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख सकते हैं। ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर आपस में हम मोहब्बत रखेंगे तो फिर लोग जानेंगे कि हम मसीह के शागिर्द हैं, क्योंकि हम में मोहब्बत है ही नहीं। पहले मैंने मैसेज में एक दिन बताया था, हम सब जब इकट्ठे होते हैं हर कोई अपना हिस्सा खा लेता है। कोई तो भूखा रह जाता है और कोई शेर हो जाता है। ये मोहब्बत नहीं। मोहब्बत यही है, पहले दूसरे भाइयों को खाना खिलाएं, थोड़ा सब्र करें, इंतज़ार करें, तो आपकी मोहब्बत यही है। जब हम अभार की किताब पढ़ते हैं उसका 19 बाब है। अभार की किताब है उसका 19 बाब है और उसकी 18 आयत। हसद है ना, हसद है, झगड़ा है, क्रोध है, तकब्बर है, बदला लेना। किसी न किसी ज़ियाफ़त में जब जाते हैं आप कहते हैं, सोचते हैं लोग, सोचते हैं हाँ जी आप उस वक्त इसने ऐसा किया अब मैं करूँगा, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि वक़्त को गनीमत हमने जानना है। क्योंकि दिन बुरे, हमने खुद अपने आप को बदलना है। कलाम मुक़द्दस को सुनकर, कलाम मुक़द्दस पर ईमान रख कर। पहला करंथियों उसके 13 बाब की 14 आयत में लिखा है, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दामी है, अफजल इनमें मोहब्बत है। आप में मसीही जैसी मोहब्बत का होना ज़रूरी है। आप में पलूस रसूल जैसी मोहब्बत का होना ज़रूरी है। आप में सब रसूलों जैसी मोहब्बत का होना ज़रूरी है। देखते हैं हमारे पास जो हमें खुदा ने दी है आज मेरे लिए और आपके लिए है। आभार की किताब उसका 19 बाब उसकी 18 है। तो उसमें क्या कहता है, तू इंतकाम ना लेना। तौरात की किताब में, तोरा की किताब में हम बता रहे हैं कि तू इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से किना रखना। कहता है कि तुम इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से किना रखना, बल्कि अपने हमसाए
से अपनी मानद मोहब्बत करना। मैं खुदावंद हूँ। हमसाया है कौन? हम दो ही तो कौमें हैं। एक दूसरे से मोहब्बत रखना ज़रूरी है हमें। वो खुदावंद हमें बता रहा है, कह रहा है कि मैं खुदावंद हूँ। हम दो तो भाई हैं, दो तो कौमें हैं, तो किना रखना क्या ज़रूरी है? इंतकाम लेना ज़रूरी है? इंतकाम लेने की ज़रूरत नहीं। खुदावंद यस्सु कहते हैं इंतकाम लेना मेरा काम है। आप 22 बाब मकाशफा 22 बाब पढ़ कर देखें तो वहाँ पर लिखा, उसमें लिखा है जो भी शख्स जो करता उसे करने दो, उसे मना ना करो, बदला लेने वाला मैं हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। आज का कलाम आप सुने और खुदावंद के ज़ूर में खुद भी ठहरे, सो खुदावंद आपको बरकत देगा। आप खुदावंद के कलाम को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ये यूट्यूब चैनल मेरा नहीं, आपका नहीं, ये खुदावंद यस्सु के कलाम का है, जिसे आपने लोगों तक खुदावंद के कलाम को पहुँचाना है। खुदावंद आपको बरकत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हूँ देसी आदमी। मैं सीधी सीधी बातें करता हूँ, सच्चाई से मैं टलता नहीं हूँ। झूठ से मुझे नफ़रत है, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी तो नफ़रत होगी ना मुझे, क्योंकि झूठ से मुझे नफ़रत है। मैं सादा और सीधा आदमी, मैं ज़्यादा जुमले बनाने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं आपके दरमियान में दुआ करूँगा आपके लिए कि खुदावंद आपको बरकत दे और आपके ख़ानदान, आपके घराने, जो बच्चे बेटियां बेटे दुखी हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, तरह तरह की बीमारियों में भी मुब्तला हैं, जो बेवलाद बेटियां बेटे हैं, उन्हें भी खुदावंद बरकत देगा, क्योंकि खुदावंद की दी हुई नेमतों में किसी तरह की कमी नहीं। वो जिसे देता है तोल कर, नाप कर नहीं देता। आपके लिए खुदावंद के कलाम में सब कुछ मौजूद है। आप उसका दरवाज़ा खटखटाएं, सो वो खोलेगा, सो आपको बरकत देगा। खुदावंद के नाम से आमीन।